Welcome back everyone. Now I would like to request Professor Dr. D. Anjalakshi ma'am to introduce speaker Professor Dr. Rajendra Prasad sir. Thank you, Purnima. It's a time to give biography about some eminent persons today's sessions. Welcome our eminent speaker, Professor Rajendra Prasad sir, MD, DT, CD, FAMS, FCCP, USA, FRCP plus Glasgow and FRCP in London. Sir, current affiliations, Director of Medical Education, Professor Respiratory Medicine from Era Lucknow Medical College and Hospital, Vice Chairperson, National Task Force. We started from 1962. 1960 के पहले तो कोई दवाई नहीं थी. पहली बार 1962 में National TB Control Program was formulated. My MD examiner was person who formulated National TB Control Program. At that time, Bodia, he is no more. And then काफ़ी आए, फिर हम RNTCP पे आए, फिर अब आजकल हम NTEP पे, नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम पे चल रहे हैं. दिस इज़ द नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जिसमें आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन बहुत सी दवाएं थी. लेकिन ये जब when it was evaluated, it was found it has not worked in India. So they have revised the program RNTCP, and in RNTCP there has been a good thing that political now you see every prime minister, president is speaking for tuberculosis. So adequate supply of right drugs and directly observed treatment, those are the components, and the aim was, it was a millennium development goal. Based on that we wanted to, and what was the aim was from 1990 to 2015 halve the prevalence of morbidity and mortality in tuberculosis. That was the aim, and with that aim we just went ahead, and you know, when it was evaluated in 2015 we are practically able to reach that aim. So still there are a lot of tuberculosis, you know, reduction of death was just 50%, morbidity was just 50%, so that is not the end of it. So we revised the program in 2019. National TB RNTCP was changed to National TB Elimination Program. And what is this? This is the slide which you have to understand. Many of the politicians ask me कि सर 25 के बाद टीबी खत्म हो जाएगी क्या देश से? That is not the way. Actually, why the name elimination was put, we are moving towards, now we are moving towards eliminating tuberculosis from the world. That's why we have named this program as TB, a very futuristic name, I must say. But the program at present we are running is the End TB program. What do you mean by End TB? कई बार बोल चुके हैं हम. End TB का मतलब है कि माइलस्टोन्स ये दिए गए हैं, टारगेट्स दिए गए हैं. This is WHO's. Country also has adopted this. So उसमें क्या देखिए कि अगर आप 2030 का एंड टीबी का है, जिसमें रिडक्शन इन नंबर ऑफ डेथ्स अप टू 90%, यानी जितनी डेथ 2015 में थी जो हमें टीबी कंट्रोल प्रोग्राम से अचीव हुआ, जो RNTCP से कंट्रोल हुआ था, तो उसका 90 यानी सिर्फ 10% डेथ बचे, और जो टीबी रिडक्शन इन टीबी इंसिडेंस टू द ट्यून ऑफ 80%, यानी 20% टीबी बचे. तो ये, और देयर शुड बी नो कैटास्ट्रॉफिक एक्सपेंडिचर ऑन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. ये 3 एम लेके एंड टीबी स्ट्रेटेजी बनाई गई. एंड बट हमारे प्रधानमंत्री जी ने, I was part of this meeting which happened in 13 March 2018, and then Government of India wants to end it 5 years earlier. सुनते रहते हैं आपने कि 2025 तक TB end हो जाएगा. That was the genesis. In this meeting it was decided, and we have an Indian target also. देखिए इंडिया में, देखिए आप समझ जाएंगे बहुत आसान से कि 200, देखिए ना, रेड कलर इज इंसिडेंस. तो रेड कलर 2015 में 217 पर लाख था उस टाइम. अब वो डाउन होके 25 तक 44 पर लाख पे आना है. अभी हम लोग 180 तक पहुंच पाए हैं. कोविड ने बहुत बड़ा नुकसान कर दिया. उसके बाद ऐसे डेथ देखिए, डेथ हमारा 32 पर लाख था, ग्रीन कलर डेथ का है.
32 per lakh था, that has to come down to 90%, means 3 per lakh. अभी भी डेथ में हमें कोई बहुत इंडेंट नहीं बना पाए हैं क्योंकि कोविड ने बड़ा डिस्टर्ब कर दिया. वी आर मूविंग वेरी फास्ट. सो दैट इज द टारगेट ऑफ एंड टीबी स्ट्रेटेजी फॉर इंडिया. सो कभी कोई पूछे तो ये नहीं, एलिमिनेशन की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन अभी हमारा टारगेट ये है. टारगेट का मीन्स एंड टीबी स्ट्रेटेजी मीन्स टीबी सीजेस टू बी अ पब्लिक हेल्थ इशू. इतना कम जब नंबर हो जाएगा, इतना कम डेथ हो जाएगा, तो पब्लिक हेल्थ इश्यूज ज़्यादा नहीं रहेगा. वो एम है हमारा एंड टीबी स्ट्रेटजी का. आई एम क्लियर. उसके बाद फिर आप आइए कि कैसे उसको अप्रोच करेंगे. अप्रोच गवर्नमेंट ने बनाया कि एवरी केसेस शुड बी डिटेक्टेड, ट्रीटेड, प्रिवेंशन. तो तीनों कंपोनेंट, ये हम तीनों बना रहे हैं, तीनों कंपोनेंट उसके अंदर इन्वॉल्व किया गया. और बिल्ड मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्ड करना है. दैट वाज अगेन एम. दैट इज हाउ इट वाज. एंड एनटीपी मेडिकल कॉलेज का भी स्ट्रक्चर, दिस इज ओनली प्रोग्राम जिसमें मेडिकल का हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए नोडल अफसर हैं, हमारे जो कोर कमेटी मेंबर, मैडम भी कोर कमेटी के मेंबर हैं. तो कहने का मतलब ये टास्क फोर्स का स्ट्रक्चर है. जो टास्क फोर्स का स्ट्रक्चर नेशनल टास्क फोर्स है, जोनल टास्क फोर्स है, फिर आपका स्टेट टास्क फोर्स है, और फिर जो है ये कोर कमेटी मेडिकल कॉलेज में सब में होती है. वी हैव अराउंड 700 मेडिकल कॉलेजेस. और लकली आई हैव बीन at every level. now I am currently vice chair of national task force. so that is why and एक और है कि टीबी इज ए नोटिफाइबल डिजीज. ये भी आपको सबको बताना है कि भाई टीबी का डायग्नोज कर रहे हो, इलाज कर रहे हो, उसको नोटिफाई करो. And then there are a lot of money is given to the patient and for their nutrition, and money is also given to the people who are inducing to get treatment, completing the treatment. Maybe at every level there are a lot of incentives. There I'll not go into detail. There is a one Nikshay Sampark. There is a national TB call center है एक, जिसका नंबर ये है. That number you can find, you can 24 hour काम करता है. And collaboration to add various, TB is a social disease. I always say, not only by treating tuberculosis you will be able to end. By taking help of poverty, nutrition, everything is there to be very popular. I'll skip some of the slides. We have commitment to end TB by, there is a political commitment is very high. Our president and our health minister, they are all speaking about this program, and even our prime minister. This is the last year's, so this is the last World TB Day 2023 when our prime minister spoke. It was held in Banaras, UP में ही हुआ वो भी. और एंड टीबी समिट दे कॉल इट. जो उन्होंने, हम लोग सोच रहे थे शायद ये 25 का कुछ आगे बढ़ाएंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर वॉज वेरी नो वी हैव टू. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इट इज गुड पॉइंट. अगर हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए तो कम से कम एक उसके पास तो कुछ पहुँचेंगे. तो लिथार्जी जो है वो थोड़ी सी, इसमें आप लोगों का कोऑपरेशन सबका बहुत ज़रूरी है, नॉलेज भी ज़रूरी है. And it was recognized there by WHO that India efforts are a new model for global war on TB. So India's effort is always recognized by everyone, and this is, but there are many challenges. ऐसा नहीं जो मैंने बताया कि सब प्लस ही प्लस है. Challenges reaching the unreached, huge reservoir of latent TB infection, how to treat, how to complete them, quality of care in the private sector. We still see wrong prescriptions are being floated. And stigma and discrimination is still very high. आज मुझे लंग कैंसर का मरीज भी मुझसे पूछता, सर टीबी तो नहीं हो गई? तो मैंने कहा भाई अगर तुझे टीबी हो गई होती तो मैं तुझे 6 महीने में ठीक कर देता, और ये लंग कैंसर है. परिवार वालों को बताया कि भाई तो इतना स्टिग्मा है ट्यूबरकुलोसिस का, यानी लंग कैंसर वाला भी मरीज पूछ रहा मुझे टीबी तो नहीं हो गई, कि उनको भी खांसी आती है, उनमें भी ब्लड आता है. सो द स्टिग्मा इज देयर. और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का थोड़ा अभी, अब तो नई नई दवाएं आ गई हैं, उसका आउटकम बहुत अच्छा हो गया, बट स्टिल वी नीड लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट. सो ऑल दीज वर्ड्स, this is a very famous diagram which we say that
At present, whole world is going down by around 2 to 3%. अभी भी चल रहा है जो, लेकिन what if you want to end TB strategy achieve by 25 or 30, this has to be very steep fall. And for steep fall, it is not only the treatment which is essential. The new vaccine and new preventive treatment. Preventive treatment already has been introduced in India with this, but vaccine we are working, and I say that if we can produce a COVID vaccine, why we cannot produce a TB vaccine? So I think that the day the vaccine will come, probably is going to boon for TB elimination program. With this word, it's time to come together to, my end slide is, it's time to come together to end TB. Everyone has to work in a very passion mode, so that wherever you are, whatever you are, everything has to cooperate to end TB, and that is necessary also. मेरे से बहुत डॉक्टर, मेरे बहुत मरीज डॉक्टर हैं, कहाँ जाएंगे? being one of the very senior in this field, तो मरीज से डॉक्टर लोग सवाल पूछते हैं कभी कभी, सर मेरे बच्चे को टीबी कहाँ से हो गई? So what I answer to them? I am just trying to say to you. मैं जवाब ये देता हूँ कि डॉक्टर साहब बुरा ना मानिएगा, आपने जो टीबी के मरीज आए ना, उनका इलाज सही से नहीं किया और टीबी इसीलिए फैल रही है, और जब टीबी फैलेगी तो ये तो नहीं देख पाएगी कि बच्चा आपका है या गरीब का है. So your child can also get the TB. So please, my message is very clear. Wherever you are, if you are in the TB treatment program or TB treatment, private sector, anywhere, please take with the mission कि इस मरीज को मुझे ठीक करना. और उसका मैंने जवाब आपको पहली स्लाइड में दिया. अगर मेरे को विश्वास करेंगे, 50 सालों में मैंने कम से कम 5 लाख मरीजों का टीबी का इलाज किया होगा. Or it is by that experience I am saying it is 100% curable disease. So with this, my take home messages is early diagnosis and treatment is very, very important. Every TB patient must get proper and complete treatment. People must make use of NTEP program. अभी NTEP में सिर्फ 50-60% ही लोग आ रहे हैं. सरकार फ्री दे रही है. बीडाकुलिन लाखों की दवा है, डिलेमिनिड लाखों की दवा है, फ्री दे रहे हैं, लेकिन क्या है? परसेप्शन, जो नॉलेज की कमी है. दैट इज व्हाई आई मस्ट थैंक वंस अगेन दीज पीपल हु हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस and for initial program, training of the trainers, and so that I hope you will be able. And my what I wanted to say in the end, as I was talking to Farjana while during inaugural function, that you should make a module. I will advise you people to take module and take these slides, and if any other help is required, especially in the tuberculosis section, so I will love to, our department will love to participate. With this, thank you very much. And before I say, for your information, I have referred some of my, I have many YouTube lectures. People call me now YouTuber. I was in Thrissur attending TB chest conference national. मेरे को बहुत से PG लोग मिले, मेरे सर हम आपका YouTube देखते हैं. These are all educative, so we have many YouTube. Even this lecture, sort of a lecture is available on YouTube. There is what is new in TB, master class on tuberculosis. हमने तो अपने PG के लिए हिस्ट्री कैसे लिया जाता है, एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, और हाउ टू रीड. अभी हमारी नई किताब चेस्ट एक्सरे की आई, हाउ टू चेस्ट एक्सरे सबको पढ़ने की जरूरत पड़ती है. मैं हमेशा कहता हूँ, पढ़ने आता नहीं. टीबी को कैंसर, कैंसर को टीबी, न्यूमोनिया को टीबी और इधर को उधर, फैलिसी है. So actually story about I have a YouTube lecture, chest X-ray interpretation of UG student in Hindi. What was written, probably हिंदी का बड़ा माहौल है, वो मैं दिखाना ये चाहता हूँ. वो मैंने पहले 4 साल पहले एक अंग्रेजी में डाला था, और दोनों ये क्लास में यही पढ़ा रहा हूँ एरा में. उसको ये लोगों ने, इन लोगों की मेहरबानी से उन्होंने कर लिया. तो इसको जब डाला, इसको लगभग 1.25 लाख के आसपास,
और हिंदी वाले को अभी मैंने इसको साल भर नहीं हुआ, ये 273 पुराना है, अभी 3,10,000 लोग देख चुके। सो एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड रेडियोलॉजी का अगर कोई हो तो यू कैन सी। तो मेरे स्टूडेंट एक्चुअली आई हैव टॉट एक्सरे इन अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट को तो पढ़ाना है लास्ट 50 ईयर्स। तो केजी वाले जो स्टूडेंट थे सर मतीन साहब, जो केजी के जो स्टूडेंट थे जिनको मैंने एमबीबीएस में 90s में पढ़ाया होगा, उसमें से कुछ मेरे फेसबुक फ्रेंड बन गए क्योंकि अब वो प्रोफेसर और डायरेक्टर बन गए। तो फेसबुक फ्रेंड बने तो उन्होंने फेसबुक पे मुझको लिखा कि सर जो आप एक्सरे पढ़ाते थे और जो एक्सरे आप दिखाते थे तो वो कहाँ हैं सब, तो सर उसको डालिए क्योंकि नहीं तो आपके साथ आई एम 73 लिटरली। सो एनी हाउ गॉड इज वेरी ग्रेसियस एनफ ऑन मी। सो उन्होंने कहा सही, ये बात उन्होंने कह दिया सर आपकी उम्र बढ़ गई अब उसको एक्सरे को आप कहीं ना कहीं प्रिजर्व करिए। सो देन फर्स्ट आई पुट ऑन एज दिस यूट्यूब लेक्चर हाउ टू रीड चेस्ट एक्सरे, क्योंकि एक्सरे तो हर एक को पढ़ने। एंड देन ऑन देयर रिक्वेस्ट माई न्यू बुक हैज, इसमें नहीं है चेस्ट एक्सरे, मैंने यहाँ भी एरा के लाइब्रेरी में है, वो दो वॉल्यूम में मैंने पढ़ाया। ये बहुत रेयर बुक इसलिए है सर कि रेडियोलॉजी की बुक जो है वो मोस्टली रेडियोलॉजिस्ट लिखते हैं। चेस्ट एक्सरे हाँ मेरी परीक्षा जब हो रही थी हाँ तो वाइवा में टीचर ने पूछा कि पिकअप एनीथिंग, तो मैं चेस्ट एक्सरे को उठा लिया तो बोला श्योरली तुम फेल हो जाओगे। बोला आज तक कोई पास नहीं होता है डीएमआरटी चेस्ट एक्सरे में, कुछ दूसरा उठाओ। फिर मैं सीटी पकड़ा सीटी आसान था और सीटी बहुत इजी, वो भी ब्रेन का सीटी। सर हमको प्लीज बताइए किताब को। मैं रेडियोलॉजी प्रैक्टिस नहीं करता लेकिन हमको बहुत जरूरत पड़ती है। मैंने वो स्लाइड उधर से हटा दी थी, मैं आपको अपना वो दे दीजिएगा, मैं आपके ऊपर यूट्यूब लेक्चर भी डाल दूँ। आपका नंबर लूंगा सर। हाँ, और ये अमेजन पे भी अवेलेबल है बुक। ठीक है सर। फिर ये यूट्यूब ने मुझे फिर इंसाइट किया, मैं किताब, अच्छा थैंक्स टू कोविड आई मस्ट से। सर एक मिनट और, आप जो एआई बेस्ड जो कर रहे हैं मतलब एक्सरे हैंड होल्ड, अभी सर मैं चूंकि इसमें अभी मैं 2024-26 में ग्लोबल एड जो है टीबी HIV और इसमें मुझे टीबी का ही रिप्रेजेंटेशन में CBI के थ्रू से लिया है 24-26 में। तो उसमें मैं इतना जरूर किया हूँ जो आया था मतलब कि आपको पिक करना है किसको, तो मैंने उसको कहा कि आप AI हैंड हेल्ड एक्सरे मशीन्स उसको आप लाइए और झारखंड में कितना दे रहा हो पहले हमको बताओ, तब हम उसको अप्रूव करेंगे। वो मैं पता नहीं आप लोग उसी पे शायद काम कर रहे हैं, देख के अच्छा लगा। नहीं आएगा सब आएगा, थिंग्स आर मूविंग। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माय प्रेजेंटेशन बाय दिस अगेन फेमस सेइंग that anyone who keeps learning stays young। बच्चे लोगों को ये मतलब एक वो है, अब हम लोग की तो शाम हो गई है, अभी फरीदी भी थे, हम लोग अक्सर कहते हैं भाई हम लोगों की तो शाम हो गई है, अब आप ही का समय आने वाला है। बट इफ यू वांट टू रिमेन यंग कीप ऑन लर्निंग, दैट्स व्हाई माय लास्ट स्लाइड आई ऑलवेज इट इज लाइक्ड बाय मेनी ऑफ थ्रू आउट द कंट्री दैट आई एम स्टिल लर्निंग। विदाउट लर्निंग नॉट पॉसिबल। जब मैडम ने मुझे तो भूल गया था, मैं त्रिशूर से आया, फ़ोन पे बात हुई तो मैंने अपनी स्लाइडें कुछ थोड़ी सी इधर उधर करके और फिर प्रेजेंट किया, मैंने कहा किस ऑडियंस को बोलना है। सो विद दिस आई वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई लव इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई लव टू आंसर प्रोवाइडेड आई कैन। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन इफ़ यू वांट टू आस्क, कहीं कुछ क्लैरिटी चाहिए? Although tuberculosis का वो मैं I'm thinking if it is going for a type based diagnosis, maybe it will become the hereditary in the future for the TB. Heredity in the future in TB means I can't. Because we are assessing for the CB19. No, genome means particular genome of bacteria. What type of bacteria is this? What are the aberrations? And by that you can diagnose it is drug sensitive, rifampicin, other resistance. That was the gene sequencing mean. It won't be hereditary. हाँ, it doesn't. ये भी एक गलत धारणा है कि TB is hereditary disease.
दिस इज अ रॉन्ग नोशन। तो फिर कंपलसरी बच्चों का टीबी हेरिडिटी डिजीज नहीं है, शेयर पे है। ये इन्फेक्टिव है। तो ये तो जरूर है कि परिवार में एक को हुआ, उसका इलाज अगर नहीं शुरू हुआ, डायग्नोज नहीं हुआ तो दूसरे को हो जाएगा। इसीलिए लोग गलत इंप्रेशन ले लिए हैं शायद साहब हमारे परिवार में साहब पिताजी को भी थी, बाबा को भी थी साहब। पहले यही होता था, हाँ। पता लग गया इनको टीबी है, हाँ, अभी छोड़ देती थी। अभी भी छोड़ देती है, सही बात है। Actually, sir, it was very wonderful session, sir. Many things we learned from you, sir. And lung TB is very famous, but skin, everyone knows, but skin TB is not too common. Sir, I want to know from you that a person, a patient who is having any skin infection, what's the difference by seeing? What's the difference that the TB, this is a TB skin infection or a normal skin infection? Is there any unique appearance or what? By the way, what you are, madam? Skin TB. नहीं आप नहीं आप I'm हो। from nursing department. My name is Pinky Devi. I think your question is very intelligent. Please sit down. Thank you, sir. कोई स्किन वाला यहाँ तो नहीं है? नहीं है। अब स्किन देखिए इन्फेक्शन में देयर आर वेरियस, although we are not from skin side, लेकिन बट वी कीप ऑन सीइंग सम टाइप ऑफ पेशेंट्स एज अ रेफरल। सो स्किन में एक पर्टिकुलर टाइप का अल्सर टाइप के बनते हैं, स्क्रोफुलोडर्मा कहते हैं, जिसका अंडरवर्टेड मतलब इवर्टेड होता है। वो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है। अल्टीमेटली सिर्फ उसी से देख के नहीं, उससे देख के आप सस्पेक्ट कर सकते हैं, यस दिस लीजन व्हाट इज देयर, मैकुलोपैपुलर लीजन भी हो सकता है, अल्सरेटिव भी हो सकता है। अल्सर का एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि उसके जो बॉर्डर्स होते हैं इवर्टेड होते हैं, तो उससे ग्रैनुलेशन टिश्यू कैसा दिखता है वो सब देख के वी कैन सस्पेक्ट। अल्टीमेटली टीबी को डायग्नोज तो उसके बायोप्सी करके ही अल्टीमेटली होता है। इट्स ए रेयर, नॉट वेरी कॉमन, आई मस्ट से, वेरी रेयर। Thank you so much, sir. As sir explained about tuberculosis, its causative agent, diagnosis, and drugs, much more, which is very helpful for fighting against tuberculosis. Now, I would like to request Professor Dr. D. Anjalakshmi ma'am to facilitate Professor Dr. Rajendra